السلام علیکم۔ ستمبر 1181 کا ایک دن تھا۔ قاہرہ کو پانی فراہم کرنے والی ایک نہر ابو مناجہ کا بند توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہر کے باسی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کا ٹھاٹھے مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قاری تکبیر پڑھ رہے تھے اور دوسرے کنارے پر نقارے بج رہے تھے۔ مصر اور قاہرہ کے سالانہ کیلنڈر کے اس اہم ترین دن ملک کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس نہر کے سنگم پر موجود تھے۔ مصر، قاہرہ اور ان تمام ممالک اور خطوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی طرح دریائے نیل کے پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ مورخ جانتھن فلپس نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف دی سلطان صلاح الدین ایوبی میں انہوں نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی اسماعیلی فاطمی خلافت کے وزیر اور پھر اس کی 2 سالہ خلافت کے اختتام کے بعد خود حکمران بنے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریاست کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ستمبر سن 1181 میں اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ شرکاء میں قرآن کے قاری، امراء، سپاہی اور اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر تیار کیے گئے خیمے میں تعظیمات کا انتہائی تفصیلی سلسلہ مکمل کیا گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ اور پرتعیش تقریب اور پھر ضیافتوں کا سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے غیر مانوس بات لگتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریبات کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے ایک کزن کے بیٹوں کے ختنے کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے، جس میں 700 بھیڑیں ذبح اور 80 قنطار مٹھائی تیار کی گئی تھی۔ ابو مناجہ بند کا نہر کھولے جانے کے موقع پر کدالیں اٹھائے لوگوں نے ان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی نہر اور دریا کو الگ کرنے والے بند کو گرانا شروع کیا۔ جیسے ہی تمام گاؤں کے لوگوں اور سپاہیوں نے بند کو گرا دیا تو پانی کی بحالی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنی ریاست میں لوٹ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ بدل گئے اور وہ سوچنے لگ گئے کہ آخر سلطان نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے ہیں۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا، وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ سامنے ایک غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا، اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی ہے اور اس کا تو مطلب جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان عدالت میں موجود تھا۔ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں چھپایا ہوا تھا کیونکہ سلطان کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے سلطان معظم، کہ آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ سلطان نے کہا، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے کہا کہ میں اس کا مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب تم بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی؟ تو عورت رونے لگ گئی اور کہا، سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بد کردار اور غلیظ انسان ہو اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنا بڑا گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے واپسی پر اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہ لگے اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہ پڑیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں سے پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن وہ ابھی تک چلنے کے بھی قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے قاضی کے پاس گئی تھی کیونکہ وہ ڈاکو کوئی عام ڈاکو نہیں ہے، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں۔
इंसाफ लेने के लिए अपना मुकदमा लेकर गई तो उल्टा काजी साहब मेरे जिस्म को भेड़िए की तरह देखने लगा। मुझे मालूम हो गया कि अगर काजी से इंसाफ लेना है तो पहले काजी के बिस्तर को गर्म करना पड़ेगा। ये सुनकर सुल्तान की नजरें झुक गईं और सुल्तान ने उसी वक्त एक सिपाही को भेजा और कहा कि उस औरत के घर जाओ और मालूम करो कि वाकई औरत सच कह रही है। सुल्तान का सिपाही चंद ही लम्हों में वहां पहुंच गया और आकर सुल्तान को बताया कि उस औरत की एक एक बात दुरुस्त है। उसके शोहर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और शाही हकीम ने भी उसका मुआयना किया है और कहा है कि वो अब बिल्कुल नामर्द हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उस गांव के काजी और उन डाकुओं को घसीटते हुए मेरे पास हाजिर करो। चंद घंटों में सुल्तान ने देखा कि सिपाही काजी और 3 आदमियों को घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं। फिर काजी को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया तो काजी ने सुल्तान के सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा, जब तक काजी का सर कलम नहीं होगा उस वक्त तक इस मुकदमे का फैसला मैं नहीं करूंगा। उस काजी का सर कलम करने के बाद सुल्तान ने काजी के सर को अपनी तलवार की नोक पर बुलंद करते हुए कहा, अगर तुम्हें जमीन के मुंसफ से इंसाफ नहीं मिला था तो तुम ऊपर वाले से इंसाफ मांगती या तुम मुकदमा लेकर मेरे पास आ सकती थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सुल्तान की अदालत से अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई भी हाजतमंद बगैर अपनी हाजत पूरे किए नहीं गया। तो उस औरत ने कहा, सुल्तान में अकेली थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रह चुकी थी कि मैं किसी के पास इंसाफ के लिए जाऊं, और आप जानते हैं कि एक नौजवान औरत बगैर शोर के कैसे रह सकती है, और इसलिए ये गुनाह मुझसे सरजद हुआ। लेकिन इसमें मुझे शर्म नहीं कि मैंने काजी का बिस्तर गर्म करने से बेहतर है कि एक जानवर के साथ अपनी हवस मिटाई जाए। क़यामत के दिन में अपने अल्लाह के सामने किसी गैर मर्द के साथ ज़िना की वजह से नहीं पकड़ी जाऊंगी। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, ये जुर्म भी बहुत बड़ा जुर्म है। जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की, नाइंसाफी की, वो अपने अंजाम को पहुंच गया है, लिहाजा तुम्हें भी अब सजा भुगतनी पड़ेगी। और फिर कहते हैं कि सुल्तान ने शरीयत के मुताबिक उस औरत को सजा दे दी। और इसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि मेरी पूरी सल्तनत के अंदर पैगाम फैला दो कि कोई भी औरत किसी भी नामहरम मर्द के साथ या किसी भी बुरे फेल की मुर्तकिब पाई गई तो उसको संसार कर दिया जाएगा। और फिर कहते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस हुक्म के बाद किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई ऐसा गलत कदम उठा सके। दोस्तों, यहाँ आपको सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या सुनाते हैं जिससे आपके इल्म में मजीद इजाफा होगा। जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हलब शहर को फतह किया तो आपने अपने करीबी साथी और माहिर जासूस अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि एक दस्ता तैयार करें जो कि जासूसी करने में माहिर हो, और तुम भी इनके साथ चलोगे और हलब शहर के मगरब की जानब सारे साहिल का मुआयना करो और पता लगाओ कि कहीं सलीबी जासूस मगरब की जानब सुरंगों के जरिए हलब शहर में दाखिल न हो जाएं, क्योंकि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक सलीबी अब दोबारा हलब शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे और वो चाहते हैं कि वो शहर में दाखिल होकर फसाद बर्पा करें और सुल्तनत को कमजोर करके दोबारा शहर को हासिल करें। अली बिन सुफियान ने सुल्तान के हुक्म की तामील की और 10 सिपाहियों पर एक दस्ता तैयार किया जिसमें अली बिन सुफियान भी शामिल था। और दोपहर के वक्त अली बिन सुफियान उस दस्ते के साथ रवाना हो गया। लेकिन जाते वक्त अली बिन सुफियान ने सुल्तान को फरमाया कि हुजूर, आप 7 दिन के बाद फलाह गांव के साथ एक खंडर है, आप वहां आकर मुलाकात करना, क्योंकि जो भी मालूमात होंगी मैं वहां आकर आपको दूंगा। क्योंकि मुझे शक है कि हलब शहर की फतह के बाद महल में बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे शक है कि सलीबियों के चंद जासूस महल में दाखिल हो गए हैं, लिहाजा मैं वापस आकर उन जासूसों को पकड़ूंगा। लिहाजा उस वक्त तक मैं कोई भी अहम बात आपको महल में नहीं बता सकता, क्योंकि जासूसों के कान दीवारों के कानों से भी ज्यादा तेज होते हैं। इसके बाद अली बिन सुफियान वहां से रवाना हो गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान की क़यामगाह से लेकर अली बिन सुफियान की बताई हुई जगह जहां आपने अली बिन सुफियान से मुलाकात करनी थी तकरीबन 1 दिन का घोड़े का सफर था, इसलिए सुल्तान 1 दिन पहले सफर पर रवाना हो गए। आपके साथ सिपाहियों का खास दस्ता मौजूद था। चलते चलते सुल्तान एक गांव में से गुजरे तो घोड़े थक चुके थे, सुल्तान को भी प्यास लग रही थी। सुल्तान ने थोड़ी देर एक जगह आराम करने का सोचा और घोड़ों को छांव के नीचे बांध दिया और सुल्तान अपने खेमे में आराम करने के लिए चले गए। चंद लम्हों के आराम करने के बाद जब सुल्तान दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे तो आपकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक जमीन के टुकड़े के ऊपर सर झुकाए बड़ी परेशानी के साथ बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग शक्ल से कोई वलीउल्लाह लगता था। उसकी नूरानी शक्ल ने सुल्तान को अपनी तरफ खींच लिया और सुल्तान अपने घोड़े को आहिस्ता करते हुए उस बुजुर्ग के पास चले गए। अब सुल्तान उस बुजुर्ग से पूछने लगे, बाबा जी बताओ ऐसी क्या बात है कि आप इतनी परेशानी की हालत में यहाँ अकेले जमीन के टुकड़े ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ किस चीज की तामीर हो रही है? मलबे को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ ज़ेरे तामीर कोई चीज गिर गई हो। और जमीन का वो टुकड़ा गांव के बिल्कुल किनारे के करीब था, लेकिन गांव से हटकर था।
सुल्तान ने उससे पूछा तो वो बुजुर्ग कहने लगा, हुजूर आप कौन है? शक्ल से तो आप बड़े नेक और ईमानदार लगते हैं। तो सिपाहियों ने बुजुर्ग को बताया, बाबा जी ये आपके अजीम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हैं। ये सुनकर बुजुर्ग खुशी से झूम उठा और फौरन सुल्तान के कदमों में गिर गया। तो सुल्तान ने उसे कंधों से ऊपर उठाते हुए कहा, बाबा जी बताओ क्या बात है कि आप इतनी परेशानी के आलम में यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ऐसी क्या बात है? तो उसने कहा, बेटा ये जो जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं ये मेरे बाबा का था, और जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक एक एक पाई इकट्ठी करता रहा ताकि मैं यहाँ एक मस्जिद तामीर कर सकूं, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी खास मस्जिद नहीं जिसमें लोग इबादत कर सकें। और ये मेरी ख्वाहिश भी थी कि जाते वक्त यहाँ एक मस्जिद बनाता जाऊं ताकि ये मस्जिद मेरे लिए आखिरत में बख्शिश का बायस बने। और मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी करके मस्जिद बनाने का फैसला किया। लेकिन सुल्तान माज़म हैरानी और परेशानी की बात यह है कि जैसे ही यहाँ मस्जिद की तामीर शुरू करता हूँ और आधी मस्जिद होती है तो ऐसा महसूस होता है कि जमीन को कोई चीज हिला रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जलजला बरपा हुआ है और आधी तामीर की हुई मस्जिद गिर जाती है। और ऐसा एक मर्तबा नहीं हुआ बल्कि कई मर्तबा हुआ है। जब 3-4 मर्तबा ऐसा हुआ तो मेरे गांव वालों ने मुझे मना किया कि तुम यहाँ जमीन पर मस्जिद तामीर ना करो, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं और अल्लाह ना चाहता हो कि इस जगह पर मस्जिद तामीर हो या तुम यहाँ मस्जिद ना बनाओ। मैंने उनका कहा ना माना और मैंने 2-3 मर्तबा फिर से मस्जिद की तामीर शुरू की। लेकिन जैसे ही आधी मस्जिद की तामीर होती है कोई जलजला नुमा चीज नुमा होती है और ये मस्जिद गिर जाती है। लेकिन गांव में बने कच्चे मकानात को खराश भी नहीं आती। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह का वली घर बनाना चाहता है लेकिन अल्लाह नहीं चाहता कि यहाँ मस्जिद तामीर हो। तो सुल्तान के जहन में आया कि शायद यहाँ कोई गलत काम होता होगा या शायद यहाँ जिना के साथ शराब या नाच गाना होता होगा। लेकिन जब सुल्तान ने उस बुजुर्ग से पूछा कि बताओ ये जमीन का टुकड़ा किसका है, तो बुजुर्ग ने कहा, मेरे बाबा ने कहा था कि मेरा अपना जाती है। मेरे बाबा को मेरे दादा से विरासत में मिला था और मेरे पास इसके बारे में मजीद मालूमात नहीं। सुल्तान ने कहा, हाँ ठीक है। फिर सुल्तान ने थोड़ी देर सोचने के बाद आवाज बुलंद कहा, मैं एक लम्हे के अंदर पता लगा देता हूँ कि ये जमीन का टुकड़ा वाकई तेरी मलकियत है या किसी और की है। बुजुर्ग बड़ा हैरान हुआ, सुल्तान माज़म ये 70 साल पुराना जमीन का टुकड़ा जो मेरे कब्जे में है आपको कैसे पता चलेगा कि इसका मालिक मैं हूँ या नहीं? फिर सुल्तान ने कहा, जाओ उस जमीन के टुकड़े से एक हरी भरी घास तोड़ कर लाओ। जैसे ही वो बुजुर्ग हरी घास तोड़ कर लाया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि अब इस हरी घास को मेरे घोड़े के आगे डालो। जैसे ही उस बुजुर्ग ने घास को सुल्तान के घोड़े के आगे डाला तो घोड़े ने घास को मुंह भी न लगाया। फिर सुल्तान ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी चाहे जाने या अनजाने में ये 70 साल से आपने किसी की जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इस जमीन का मालिक कोई और है। बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान माज़म आपको कैसे पता चला? तो सुल्तान ने कहा, बाबा जी अगर आप इसके मालिक होते तो घोड़ा अभी इसको खा जाता, लेकिन तुम इसके मालिक नहीं हो, लिहाजा उसने घास को मुंह तक नहीं लगाया। ये सुनकर सुल्तान ने उस बुजुर्ग को अपने चंद सिपाहियों के हमरा छोड़कर अली बिन सुफियान से मिलने के लिए चला गया ताकि पीछे वो बुजुर्ग और सुल्तान के सिपाही असल मालिक को तलाश कर सके। चंद दिन के बाद सुल्तान उस गांव से गुजरा तो जासूसों ने बताया कि सुल्तान माज़म ये जमीन का टुकड़ा 2 यतीम बच्चों का था जो कि इस बुजुर्ग के बाप ने इनसे जबरदस्ती छीन लिया था और उन बच्चों को भी इस गांव से निकाल दिया था। सुल्तान ने पूछा कि वो नौजवान अब कहाँ हैं? तो सिपाहियों ने बताया कि सुल्तान माज़म वो इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। अब उनका पता मालूम करना नामुमकिन है क्योंकि इस बात को 70 साल गुजर चुके हैं। तो सुल्तान ने कहा, ए बुजुर्ग, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि किसी की नाजायज जमीन के टुकड़े पर अल्लाह का घर तामीर हो। बेशक अगर ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा होता तो तुम इस पर मस्जिद तामीर कर सकते थे। तुम्हें ये बात पहले सोच लेनी चाहिए थी कि मस्जिद बार बार क्यों गिर रही है। इसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन 2 भाइयों का पता मालूम करो, ये जमीन का टुकड़ा उनके हवाले करो और इस बुजुर्ग को भी कह दिया कि इनके हकीकी मालिक तक पहुंचने में तुम मेरे सिपाहियों की मदद करोगे। इसके बाद सुल्तान ने उस गांव में से एक टुकड़ा उस बुजुर्ग को खरीद कर दिया और कहा कि अब तुम यहाँ पर मस्जिद तामीर कर सकते हो क्योंकि अब तुम्हारी मलकियत में देता हूँ। और इस तरह सुल्तान की दी हुई जमीन पर उस बुजुर्ग ने मस्जिद तामीर करवाई। और रिवायात में मिलता है कि 20 दिन की मुसलसल कोशिशों से सुल्तान के जासूसों ने उन 2 भाइयों को भी तलाश कर लिया था और वो जमीन का टुकड़ा उनके हवाले कर दिया। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि एक जमीन के नाजायज टुकड़े पर अल्लाह ताला अपने घर की इजाजत नहीं देता तो क्या अल्लाह ताला उन जालिमों से क़यामत के दिन जवाब नहीं लेगा जो गरीबों, मस्कीनों और यतीमों की जमीनें छीनकर वहां अपने बड़े बड़े महल्लात इस फानी दुनिया में खड़े कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन लोगों को इनके मामलात की वजह से जहन्नम में डालेगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں کا حق کھانے سے محفوظ رکھے اور غریبوں یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔